العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی احتلاب المواشی بغیر اذن الارباب۔ یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو جانوروں کے دودھ دونے کے سلسلے میں آئی ہیں ان کے مالکوں کے اجازت کے بغیر۔ آج کے زمانے میں تو کوئی کسی کے جانور کا دودھ نہیں دو سکتا، اجازت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اجازت رہتی ہوگی تو حدیث جو اس باب کے تحت امام ترمذی ذکر کریں گے اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جانوروں کے مالک سے اجازت لے لے تو دودھ دو کر پی سکتا ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو نہیں پی سکتا۔ اور اگر اتفاق سے جانوروں کا مالک موجود ہی نہیں ہے تو حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 3 مرتبہ آواز دے۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد بھی کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا تو ایسی صورت میں یہ دو لے اور دو کے پی لے، لیکن اتنا نہ دوئے کہ اپنے گھر بھی لے جائے، یعنی اپنی ضرورت بھر۔ اسی کے قائل اکثر علماء ہیں، لیکن اس مسئلے کو بھی ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی عرف کی عادت پر رہے گا، کہ جس جگہ پر عرف ایسا ہے تو وہاں پر تو دونے کی اجازت ہوگی، اور جس جگہ عرف ایسا نہیں ہے وہاں پر اجازت نہیں ہوگی، آواز دے کر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن تو اب حدیث باب جو ہم نے مفہوم بتایا تھا وہ ہمارے علماء کے نزدیک محمول ہوگا اس صورت میں جب کہ آدمی کو ضرورت ہو، مثلا بھوک لگی ہو، جان جانے کا خطرہ ہو تو قدر ضرورت وہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ الضرورات تبیح المحظورات اس کے تحت۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی احتلاب المواشی، یہ باب ہے جانوروں کے، ماشیہ کی جمع مواشی، جانوروں کے دودھ دونے کے سلسلے میں بغیر اذن الارباب، مالکوں کی اجازت کے بغیر۔ حدثنا ابو سلمہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو سلمہ یحییٰ ابن خلف نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الاعلیٰ، ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، عن سمرہ بن جندب، وہ روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم علی ماشیۃ، جب تم میں سے کوئی کسی جانور کے پاس آئے، فإن کان فیہا صاحبہا، یا مویشی خانے میں آئے، فإن کان فیہا صاحبہا، اگر اس میں اس کا مالک ہو، فلیستأذنہ، تو اس سے اجازت طلب کرے، فإن أذن لہ، تو اگر وہ اس کو اجازت دے دے، فلیحتلب، تو دودھ دو لے، احتلب دودھ کا دوہنا، ولیشرب، اور پی لے، وإن لم یکن فیہا احد، اور مویشی خانہ میں کوئی ہے ہی نہیں،
फलयुसव्वित सलासन, तो 3 बार आवाज़ दे। फ़इन अजाबा अहद, तो अगर कोई इसे जवाब दे, फलियस्ताज़िन हूँ, तो उससे इजाज़त तलब करे। फ़इन लम युजिब हूँ, और अगर इन लम युजिब हूँ अहद, और कोई जवाब ना दे, फलयहतलिब, तो ये दूध दूले, व यशरब, और पिए, वला यहमिल, और लेकर ना जाए, यानी ज़रूरत भर। वफ़िल बाब अन इब्ने उमर, इस बाब में अब्दुल्ला इब्ने उमर से, व अबी सईद, और हज़रत अबू सईद से है हदीस मौजूद है। हदीस समरा हदीस हसन गरीब सहीह। हज़रत समरा बिन जुंदुब की जो हदीस हमने नक़ल की वो हदीस हसन गरीब सही है। वल अमल वाला हादा इंद बाज़ अहलिल इल्म, इसी पर अमल है बाज़ अहले इल्म के नज़दीक। व बिही यक़ूल, इसी का कौल करते हैं हज़रत इमाम अहमद, इमाम इसहाक़, इमाम शाफ़िई भी। वक़ाला अली इब्नुल मदीनी, और अली इब्न मदीनी ने कहा, सिमाउल हसन मिन समरा सहीहुन। इमाम तिरमिज़ी हज़रत हसन, देखिए ऊपर गुज़रा ना, अन क़तादा अनिल हसन अन समरा, तो हज़रत हसन ने समरा से रिवायत की। तो अली इब्न मदीनी ने यह कहा कि हज़रत हसन का हज़रत समरा से हदीस का सुनना ये सही है। उन्होंने सुनने की सेहत का कौल किया। और बाज़ मुहद्दिसीन ने सिमा का इनकार किया और कहा कि हज़रत हसन हज़रत समरा से जो हदीस रिवायत करते हैं, बयान करते हैं, वो सिमा की बिना पर नहीं बल्कि उनके सहीफ़ा से नक़ल करते हैं। अब सहीफ़ा से नक़ल करना एक रिवायत बिल मुकातबा कहलाता है। इमाम बुखारी ने बाकायदा रिवायत बिल मुकातबा का एक बाब बांधा है। मुकातबा का मतलब 2 हो सकते हैं। एक ये कि आदमी हदीसें लिखे और लिखने के बाद अपने शेख को दिखाए। सुनी नहीं थी, हदीसें लिखी और लिखने के बाद अपने शेख को दिखाए। अब शेख ये कह दे कि मैंने ये हदीसें पढ़ ली हैं, सही हैं, अब ये कह दिया। ये एक सूरत ये है कि ये कहे कि मैंने ये हदीसें पढ़ ली हैं और ये वही हदीसें हैं जो मैंने ज़िक्र की हैं अपनी किताब में, मैं इन अहादीस की रिवायत की तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तो जहाँ पर ये कह दिया, इजाज़त दी, तो ये मुकातबा माल इजाज़ा है। तो इस सूरत में हमारे मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इसको सिमा का दर्जा हासिल होगा, इसको। और जिस सूरत में मुहद्दिस ने ये नहीं कहा बल्कि कहा कि हदीसें ये सही हैं और मैंने अपनी किताब में इनको ज़िक्र किया है, इस तरीक़े से कहा और इजाज़त नहीं दी, तो इसको मुकातबा मुजर्रदा अनिल इजाज़ा कहा जाता है। कुछ मुहद्दिसीन ने इसको सिमा का दर्जा दिया और कुछ मुहद्दिसीन ने इसको सिमा का दर्जा नहीं दिया। इसी वजह से यहाँ पर ये इख्तलाफ भी हुआ कि बाज़ हज़रात ने कहा कि इनका सिमा सही है और बाज़ हज़रात ने कहा कि इनका सिमा हासिल नहीं है बल्कि ये सिर्फ़ सहीफ़ा से नक़ल करते हैं। देखिए उसी को इमाम तिरमिज़ी यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। वक़ाला अली इब्नुल मदीनी सिमाउल हसन मिन समरा सहीहुन। अली इब्न मदीनी ने कहा कि हज़रत हसन का सिमा समरा से सही है। वक़द तकल्लम बाज़ु अहलिल हदीस, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है फ़ी रिवायतिल हसन अन समरा, हज़रत हसन का समरा से रिवायत करने के सिलसिले। वक़ालू, और कहा, इन्नमा युहद्दिसु अन सहीफ़त समरा, वो समरा के सहीफ़ा से रिवायत को बयान करते हैं, हदीस को बयान करते हैं, उन्होंने सुना नहीं है। बाबु मा जा फी बैए जुलूदिल मैतती वल असनाम, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो मुर्दार के चमड़े की बै और वल असनाम और बुतों की बै के सिलसिले में आई हैं। ज़ाहिर बात है बुतों की बै करना ये जायज़ नहीं है, हराम है।
क्यों؟ इसलिए कि बुत आप बनाएं और बनाने के बाद बेच दें तो लोग जो उसकी पूजा करेंगे तो ऐसी सूरत में उनका ताउन करना है गैर इलाह की इबादत में। इसलिए बुतों को बनाना ये जायज़, बनाना भी जायज़ नहीं, बेचना भी जायज़ नहीं। बनाना तो वैसे ही जायज़ नहीं है, बेचना भी जायज़ नहीं। मसला है यहाँ पर ऐसे कोई मिस्त्री हो तो मंदिर वगैरह भी वहाँ पर भी ताउन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने बना दिया तो उसकी उजरत हराम नहीं होगी, याद रखिए। मज़ीद इसमें तफसील है, फुक़हा की मज़ीद इसमें तफसील है, उसको पढ़िए, फतावा रज़विया में भी मौजूद है ये। लेकिन तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान के तहत तो आएगा कि मदद नहीं करना चाहिए। बहरहाल मसला यहाँ पर बुतों का नहीं है, वो वाज़ेह है। मसला ये है कि मुर्दार की चमड़े को उतार लिया और उसको दबागत दे दी गई, उसकी बू वग़ैरह जो भी गंदी रुतूबत है वो सब ख़त्म कर दी गई, तो उसकी बै जायज़ है, क्योंकि बादे दबागत वो पाक है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मसला ये है कि क़ब्ल दबागत क्या उसकी बै करना जायज़ है या नहीं। मुर्दार के चमड़े की तो क़ब्ल दबागत तो अभी वो पाक ही नहीं है, तो उसकी बै करना जायज़ है या नहीं। तो इस सिलसिले में इमाम तिरमिज़ी ने यहाँ पर ये बाब बांधा, और बाब से जो समझ में आया, वैसे बाब में ज़ोर इस पर नहीं दिया गया है कि चमड़े की क़ब्ल दबागत बै करना जायज़ है या नहीं है, इस पर ज़ोर नहीं है। ज़ोर बाब में इस बात पर है कि जो चर्बी होती है उसकी बै जायज़ है या नहीं, चर्बी की। तो दबागत से क़ब्ल चमड़े की बै करना, देखिए एक तो वही है कि मुर्दार की बै है, मुर्दार के चमड़ा है, तो मुर्दार का चमड़ा जो है हदीस पाक में समझ में आएगा कि ये भी हराम फरमाया है, मुर्दार को हराम फरमाया अल्लाह ने। तो अब मुर्दार का जो चमड़ा है वो भी नापाक है क़ब्ल दबागत, तो उसकी भी हुर्मत ही इससे समझ में आएगी कि उसकी बै भी जायज़ नहीं है। लेकिन रही क्या नाम है चर्बी, तो चर्बी के सिलसिले में इख्तिलाफ है। बाज़ हज़रात ने ये कहा कि चर्बी की बै जायज़ है, बाज़ ने कहा कि चर्बी की बै जायज़ नहीं है। असल में ये भी याद रहे, अरबी ज़बान में चर्बी को शहम कहते हैं, उसी की जमा शुहूम आती है। शुहूम या शहम उस वक्त तक बोलते हैं जब तक कि उसको पिघलाया ना गया हो, और अगर उसको पिघला दिया जाए तो अब उसको शहम या शुहूम जमा नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके लिए अरबी में एक ख़ास लफ्ज़ आता है वदक, छोटी काफ से बदक, वाओ दाल काफ। तो वदक जो लफ्ज़ है उसके लिए एक अलग लफ्ज़ है मौजू। तो हदीस पाक से जो हुर्मत समझ में आती है वो शहम की आती है, और जब पिघला दिया जाए तो पिघलाने के बाद उसको शहम नहीं कहते हैं, उसके लिए एक अलग लफ्ज़ है। गोया के पिघलाने के बाद जब एक अलग नाम हुआ तो एक अलग हकीकत हो गई वो। तो अब ऐसी सूरत में उसकी बै जायज़ होगी, और उससे पेंट वग़ैरह में जो भी इस्तेमाल हो वो जायज़ होगा। बाज़ अइम्मा इसकी तरफ गए, और बाज़ अइम्मा ने यही कहा कि वो चर्बी ही है, इसलिए उसकी बै जायज़ नहीं होगी। ये मसला है इस बाब में। फरमाते हैं कि बाबु मा जाअ फी बै जुलूदिल मैतती वल असनाम, मुर्दार की चमड़ों की बै में
اور بتوں کی بے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن یزید ابن ابی حبیب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن ابی رباح سے۔ عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ جابر ابن عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کے سال سنا، وہ ہوا بمکہ، اس حال میں کہ وہ مکہ میں تھے، یقول فرماتے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام فرما دیا۔ فقیلہ، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ارائیت شحوم المیتۃ، آپ کا مردار کی چربی کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے، کیا حکم ہے آپ کا، آپ کی طرف سے؟ فإنہ یطلی بہ السفن، کیونکہ اس سے تو کشتیوں کو پوتا جاتا ہے، وَيُدَّہَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور چمڑوں پر اس سے تیل لگایا جاتا ہے، اس کا تیل لگایا جاتا ہے۔ وَيَسْتَصْبِحُ کہاں گیا، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ اس کے ذریعے سے چراغ بھی جلاتے ہیں، اس کو پگھلا کے تیل بن گیا، وہ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے، یہ عرض کیا گیا۔ قال لا، سرکار نے فرمایا نہیں، ہوا حرام، وہ حرام ہے، یعنی اس سے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بعض ائمہ اس کی طرف گئے کہ جائز ہے، تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ یہ حکم ہے شحم کے سلسلے میں، لیکن پگھلانے کے بعد اس کا نام ہی بدل جاتا ہے، تو جواز کا قول کیا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، پھر سرکار نے تاکیداً اس کے بعد یہ بھی فرمایا، قاتل اللہ الیہود ان اللہ حرم علیہم الشحوم فاجملوہ، اللہ رب العزت یہود کو ہلاک فرمائے، اللہ نے ان پر چربی کو حرام فرمایا، فاجملوہ، تو انہوں نے اسے پگھلایا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ دیا، وہ پھر اس کو بیچا، فاکلوا ثمنہ، پھر اس کے ثمن کو کھایا۔ تو یہاں پر تو بالکل صراحت ہو گئی کہ یہودیوں کو اللہ نے چربی سے منع فرما دیا، حرام فرما دیا، تو انہوں نے حیلہ سازی کی۔ حیلہ سازی کیا کی انہوں نے؟ کہ انہوں نے شحم کو شحم نہ رکھا، اسے پگھلا کے ودک کر لیا۔ تو اس حیلے کی بنا پر نبی کریم نے کیا فرمایا کہ انہوں نے حیلہ نکالا۔ یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں، غالباً میں نے اس کی تصریح تو نہیں پڑھی، غالباً یہ یہود ہی اس کے قائل ہیں، ہمارے ائمہ میں سے نہیں۔ تو ان لوگوں نے حیلہ نکال لیا یہ، اور کہا کہ یہ تو ودک ہوگی، یہ شحم نہیں ہے، لہذا اب اس کو بیچو اور کھاؤ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چربی حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن کون سی چربی؟ مردار کی، یاد رکھیے، ہر ایک کی چربی نہیں۔ ہاں، وفی الباب عن عمرو عن عمر و ابن عباس، اس باب میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث موجود ہے۔ حدیث جابر حدیث حسن صحیح، حضرت جابر کی جو حدیث گزری یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی پر تمام اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الرجوع من الہبہ، یہ باب ہے ہبہ کرنے سے رجوع کے بیان میں، یعنی ہبہ کر دیا پھر لوٹا رہا ہے کوئی چیز۔ ہبہ کا مطلب کوئی چیز بغیر قیمت کے ہم نے کسی کو ایسی دے دی، یہ ہبہ ہے، پھر اس کے بعد اسے واپس کرے، تو واپس کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور ہبہ اور رجوع کرنے کی
इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वालिद है तो वालिद के लिए, वालिद ने अगर अपने बेटे को कोई चीज़ हिबा की है तो वालिद रुजू कर सकता है। क्यों? इसलिए कि हिबा करने के बाद बेटा मालिक हुआ, बेटा मालिक हो गया। मालिक होने के बाद भी शय ममलूक जो बेटे की है वो तब भी बाप की रहती है। अंता व मालुका li अबीका, सरकार ने फरमाया कि तुम और तुम्हारा माल सब तुम्हारे बाप का है। इसलिए कदरे ज़रूरत बाप बेटे के माल से बग़ैर इजाज़त के भी ले सकता है, कोई उसमें हरज। तमाम अइम्मा इस सिलसिले में, बाप के सिलसिले में मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन क्या बाप के अलावा किसी और को भी रुजू करने की इजाज़त है? तो इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफ़ी वग़ैरह, तो इमाम शाफ़िई तो बिलखुसूस बाप के अलावा को किसी और के लिए, और से हिबा को रुजू करने के लिए, वापस करने के लिए इजाज़त के कायल नहीं है। लेकिन इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद शर्तों के साथ जवाज़ के कायल हैं कि वो चंद शर्तें हैं, उन शर्तों में से कोई शर्त अगर नहीं पाई जाए तो जायज़ होगा। उन तकरीबन हमारे अइम्मे फ़िक़्ह ने 8 शर्तों का ज़िक्र किया है। मुझे यहाँ पर सारी शर्तें जहन में तो अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन उनमें ज़िक्र जो है वो ये कुछ का मैं ऐसी ज़िक्र कर दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हिबा की और हिबा करने के बाद मौहूब लहू के पास वो चीज़ हलाक हो गई, तो ऐसी सूरत में रुजू नहीं कर सकता। या बाप और बेटे ही का रिश्ता है तो वो तो खैर इससे पहले ही बयान कर दिया गया है। या ये कि मौहूब लहू ने वो चीज़ बेच दी और उसका एवज़ हासिल कर चुका, तो अब वापस ये हिबा करने वाला भी वापस नहीं कर सकता। या ज़ौजियत का रिश्ता है, मसलन बीवी को हिबा की थी या बीवी ने शौहर को हिबा की थी, तो अब ऐसी सूरत में अगर वापस लेगा तो रिश्ते में भी खटास आएगी। समझिए नहीं? इस तरह की शर्तें हमारे अइम्मे अहनाफ ने ज़िक्र की हैं कि ऐसे मामलात ना हो तो रुजू कर सकता है, लेकिन रुजू करना बेहतर नहीं होगा किसी भी सूरत में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिबा करने वाला हिबा करने के बाद अगर शय मौहूब को वापस लेता है तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इतना कभी है जैसे कि कुत्ता क़य करने के बाद दोबारा चाट ले। इसलिए बुरा तो है। अब पढ़ते हैं, बाबो मा जा फी कराहियत रुजू मिनल हिबा, ये बाब है हिबा से रुजू की कराहियत के सिलसिले में। हद्दसना अहमद इब्न अब्दा अव्वबी, हमसे हदीस बयान की अहमद इब्न बिन अब्दा अव्वबी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की अय्यूब ने, वो रिवायत करते हैं इक्रमा से, अन इब्न अब्बास, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा लना मिस्लु सूई अल आइदु फ़ी हिबतिन कल कल्ब यऊदु फ़ी क़ैइही, बुराई की मिस्ल नहीं है हमारे लिए उस आदमी, वो आदमी जो हिबा में लौटा ले, अल आइद फ़ी हिबा, हिबा में जो वापस कर ले, उसकी बुरी मिसाल नहीं है, बुरी मिस्ल नहीं है, मगर कल कल्ब, कुत्ते की तरह, यऊद फ़ी क़ैइही, जो अपने क़ै में वापस आ जाए, यानी क़ै करने के बाद चाट ले। कहने का मकसद कि ऐसा आदमी जो हिबा को वापस कर ले उसकी बुरी मिसाल नहीं है मगर ऐसे कुत्ते की सी। वफ़िल बाब अन इब्न उमर, इस बाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत है, अन्नहु क़ाल, कि सरकार ने फरमाया, ला यहिल्लु लि अहदिन
अन युअतिय अतियतन फयरजिउ फीहा इल्लल वालिद, किसी के लिए हलाल नहीं कि वो अतिया किसी को दे, तोहफ़ा दे, हिबा करे, फयरजिउ फीहा तो उसमें फिर रुजू कर ले यानी वापस ले ले, इल्लल वालिद मगर वालिद, फ़ीमा युअति वलदा उसमें कि जो वो अपने बच्चे को, अपनी औलाद को दे, वो रुजू कर सकता है। हद्दसना बिज़ालिका मोहम्मद इब्न बशार, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हमें इसकी ये हदीस बयान की हमसे मोहम्मद इब्न बशार ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इब्न अबी अदी ने, वो रिवायत करते हैं हुसैन मुअल्लिम से, वो रिवायत करते हैं अम्र इब्न शुऐब से, अन्नहु समिअ ताऊसन, कि उन्होंने हज़रत ताऊस को युहद्दिस बयान करते हुए सुना, अन इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, यरफ़आनिल हदीसा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों हज़रात हदीस को मरफ़ू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस को पहुँचाते हैं, बिहादल हदीस, इसी हदीस को। हदीस इब्न अब्बास हदीसुन हसन सही, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस जो हमने यहाँ ज़िक्र की वो हदीस हसन सही है। वल अमल वाला हादा इंदा बाज़ अहलिल इल्म, बाज़ अहले इल्म पर, इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से वग़ैरह में, उनके अलावा में से, ताबीइन से। क़ालू, उन्होंने कहा मन वहबा हिबतन लज़ी रहमिन महरमिन, क्या किसी ने कोई चीज़ हिबा की ऐसे शख्स को जो महरम है, रहमिन महरम, ऐसे रिश्तेदार को जो महरम है यानी उससे निकाह हराम है, निकाह हराम है। अब निकाह हराम होना तो बेटा मर्द ने औरत को दी या औरत ने मर्द को दी तभी समझ में आएगा, लेकिन मर्द ने मर्द ही को दी तो निकाह तो हराम का मसला ही तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वो वाला मसला आ जाएगा, ऐसा रिश्तेदार कि अगर मर्द ही है लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को औरत फ़र्ज़ किया जाए और एक को मर्द फ़र्ज़ किया जाए तो ऐसी सूरत में निकाह हराम हो जाए, तो महरम जी रहमिन महरम कहलाएगा। उसको हिबा किया, फलैसा लहू अन यरजिअ फी हिबती, तो इसके लिए इजाज़त नहीं होगी कि वो उस हिबा को वापस ले ले। वमन वहबा हिबतन लिगैर ज़ी रहमिन महरम, और ऐसे शख्स को हिबा किया जो ज़ी रहम महरम नहीं है, यानी अगर किसी एक को मुज़क्कर फ़र्ज़ किया जाए या किसी एक को या दोनों में से एक को मुज़क्कर दूसरे को मुअन्नस फ़र्ज़ कर लिया जाए तो हुर्मत साबित ना हो, है ना, तो फलहू अन यरजिअ फ़ीहा, तो ये बईद हो गया। तो अब इसके लिए ये इजाज़त है कि वो उसको रुजू कर ले, मा लम युसब मिनहा, जब तक कि उसका इवज़ ना लिया गया हो, जब तक कि उसका इवज़ ना लिया गया हो। और इमाम आज़म ने मज़ीद भी शर्तें लगाईं, उसको इल्म फ़िक़्ह की किताबों में पढ़िए। वह हुआ कौल सौरी, यही कौल इमाम सौरी का। वक़ाल शाफ़िई, और इमाम शाफ़ी ने फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन अन युअतिय अतियतन फयरजिउ फ़ीहा इल्लल वालिद, उन्होंने सिर्फ हज़रत वालिद ही के लिए कहा, हर एक रिश्ते के लिए नहीं कहा। कि इमाम शाफ़ी ने कहा किसी के लिए हलाल नहीं है कि वो कोई चीज़ अतिया करे फिर उसमें रुजू कर ले, इल्लल वालिद, सिवाय वालिद के, फ़ीमा युअति वलदा, जो वो अपने औलाद को दे। वहतज शाफ़िई भी हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर, इमाम शाफ़िई ने हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर से एहतिजाज किया, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क़ाल, सरकार ने फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन अन युअतिया अतियतन फयरजिउ फ़ीहा इल्लल वालिद, इस हदीस से इस्तेदलाल किया, फ़ीमा युअति वलदा, ठीक है। लेकिन इमाम आज़म ने थोड़ी इसमें तफसील कर दी है शर्तों के साथ, ठीक है।